So dear student, today we are discussing about carbohydrates, and we are previously discussed the introduction of biochemistry. So let's get started the topic of carbohydrate. Introduction. They are primarily composed of the elements of carbon, hydrogen and oxygen. The main carbohydrate literally means hydrates of carbon. That means the compound which are having carbohydrates, and mainly the substances are composed or becomes carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates may be defined as polyhydroaldehydes or ketones or compounds which produce them on hydrolysis. Carbohydrates may be defined as polyhydroxyaldehydes or ketones और compounds which produce them on hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको भी कार्बोहाइड्रेट या फिर polyhydroxyaldehyde और कीटोस बोलते हैं. The term sugar is applied to carbohydrates soluble to water and sweet in taste. The term sugar is defined as sugar का means क्या है ना soluble in water, it is soluble in water and sweet in taste. Carbohydrates are often referred to as saccharides, that is Greek word. Saccharon means sugar. They are broadly classified into three major groups, that is monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. So these are the variety of sources of carbohydrates. Carbohydrates simple and complex. सिंपल में मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैकेराइड. मोनोसैकेराइड के अंदर आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज और ट्राइओज, टेट्रोज, फोर्ट्रोज. डाइसैकेराइड में आता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज. एंड पॉलीसैकेराइड के अंदर आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फाइबर. Function. What are the functions of carbohydrates? They are the most abundant dietary source of energy. 4 kilocalorie per gram for all organisms. In the dietary sources, the energy are produced for carbohydrate. 1 gram of carbohydrate will produce 4 kilocalorie of energy. Carbohydrates are precursor for many organic compounds, that is fats, amino acids. Carbohydrates as glycoproteins and glycolipids participate in the structure of cell membrane and cellular functions such as cell growth, adhesion and fertilization. They are structural components of many organisms. They include the fiber, cellulose of plant, exoskeleton of some insect and other cell wall of microorganisms. Carbohydrates also serve as a storage form of energy, glycogen, and meet to immediate energy demand of the body. So this is the structure of carbohydrate का चेन. कैसे होता है चलिए देखते हैं. ये है कार्बोहाइड्रेट का चेन आपका हो गया. ये इसमें कार्बोहाइड्रेट का चेन वाला, एंड ये दोनों जो रहता है ये वाला प्रोटीन हो गया, ये वाला हो गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये वाला हो गया फॉस्फोलिपिड्स जो कि हमारा सैंडविच मॉडल का टाइप का रहता है. वही वाला लिपिड वाटर लिपिड, लिपिड वाटर लिपिड की तरह ये वो रहता है. ठीक है, हाँ, सेल मेम्ब्रेन की तरह. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrates. Carbohydrates are also known as saccharides. Greek word saccharon means sugar. They are classified into three major groups: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Classification of monosaccharides. Monosaccharides aldose, ketones. ट्रायोज के अंदर आता है अल्डोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन. कीटोज के अंदर आता है आल्डिहाइड एंड अल्डोज एंड कीटोज शुगर के. दैट मीन्स आल्डिहाइड में CHO पाया जाता है एंड कीटोज में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो होता है. ठीक है, तो ट्रायोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, कीटोज, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन. टेट्राओज में केमिकल मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है C4H8O4. अल्डोज शुगर में क्या होता है एरिथ्रोज एंड कीटोज शुगर में एरिथ्रोलोज. पेंटोज में C5H10HO5. अल्डोज में राइबोज, कीटोज में राइबोलोज.
हेक्सोज में C6H12O6, आल्डोज में ग्लूकोज, कीटोज में फ्रक्टोज। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज जो है आल्डोज शुगर है एंड कीटोज जो है फ्रक्टोज शुगर है। मोनोसैकेराइड्स, ग्रीक मोनो मीन्स वन, जनरल फार्मूला CnH2ON, they cannot be hydrolyzed, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलाइज्ड होकर मोनोसैकेराइड बन सकता है एंड पॉलीसैकेराइड भी बन सकता है, बट मोनोसैकेराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप दे आर टू टाइप्स, दैट इज आल्डोज CHO एंड कीटोज C। एग्जाम्पल उसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ट्राइओज। यहाँ पर जो भी है जितना सब है उसका मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल ही है, ये सब मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आता है इट कंटेन्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डाइसैकेराइड्स एंड ट्राइसैकेराइड्स etc. एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। 2 मोनोसैकेराइड एलिमेंट्स, दैट मीन्स 2 ग्लूकोज भी हो सकता है, 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज एंड 1 ग्लूकोज 1 गैलेक्टोज भी हो सकता है, और उससे भी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 10 तक हो सकता है। पॉलीसैकेराइड के अंदर चलिए देखते हैं डेफिनेशन। ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी, दे आर यूजुअली नॉन शुगर, दे आर 2 टाइप्स, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Example of homopolysaccharides: starch, dextrin, dextrans, insulin, glycogen and cellulose. Example of heteropolysaccharides: heparin, agar, peptidoglycans इसका अंदर में आता है। ओके, स्टेरियोआइसोमरिज्म के अंदर हम चलते हैं। स्टेरियोआइसोमरिज्म आर कंपाउंड्स दैट आर हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंस इन देयर स्पेक्ट्रल या फिर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। A carbon is said to be asymmetric when it is attached to 4 different atoms or groups। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला हो गया कार्बन, कार्बन का वैलेंसी 4 है, उसके 4 रिंग के साथ वो बॉन्डिंग बनाते हैं, 4 एटम के साथ वो बॉन्डिंग बना सकता है। देखिए यहाँ पर सपोज एक नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर OH हो गया एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ जैसे कि हमारा और एक कार्बन रिंग हो गया, वो हो सकता है क्या, और हम दोबारा बनाते हैं। ये हो गया हमारा कार्बन, ये हो गया OH, ये हो गया H, इस साइड में नाइट्रोजन, ये हो गया हमारा क्या, एसिमेट्रिक कार्बन विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आर बॉन्डिंग विथ ए कार्बन एटम। एग्जाम्पल्स में देखिए ये हो गया आपका D-ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट साइड में है OH, ये हो गया L-ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेफ्ट साइड में हो गया OH। ये OH को लेकर ही हम उसे D और N कैलकुलेशन करते हैं। इस प्लेस में क्यों करते हैं, देखिए हमारा जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है ये तो नहीं बन पाएगा, ये तो नहीं बन पाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड है वो नहीं बन पाएगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड तो नहीं है सर, सिंगल बॉन्ड है, और इसका जो लगता है उसके साथ जो बॉन्डिंग हुआ है वो दूसरा कंपाउंड है। देखिए वो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्से में क्या हुआ है, ऊपर वाला जो कार्बन है यहाँ पर कार्बन है वो सेम नहीं है, ऊपर वाला कार्बन में हमें डबल बॉन्ड वो के साथ H जो कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है एंड तो नीचे वाला जो ग्रुप है उसमें CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंस है। एंड उसका राइट साइड में OH है एंड लेफ्ट साइड में H है, सो द 4 एटम्स आर बाइंडिंग विद द कार्बन चेन are also becomes a asymmetric carbon, so we are इस कार्बन एटम के हम कंपैरिजन करके हम पता लगा सकते हैं कि उसका लेफ्ट साइड में अगर OH ग्रुप रहता है, इस कार्बन को हम पता लगा सकते हैं, ये जो कार्बन है उसमें हम पता लगा सकते हैं उसका अगर लेफ्ट साइड में रहता है तो वो L होता है, उसका राइट साइड में रहता है तो D ग्लिसरॉल्डिहाइड उसका नेमिंग इसी तरह होता है। तो इस तरफ हम देख सकते हैं। और एक हम ये है ग्लूकोज का जो कि उसका 5 नंबर में होता है, क्योंकि ऊपर वाला तो नहीं होगा, डबल बॉन्ड है, उसका नीचे से हम अगर जाए ये वाला तो नहीं होगा, उसका पहले जो रहता है वो कार्बन होता है, इसलिए उस कार्बन को हम इसी के हिसाब से ही नोमेनक्लेचर करते हैं। बहुत सारा OH तो आपको मिल जाएगा, OH में मिल जाएगा दूसरे साइड में, बट हम इस कार्बन का साइड को ही कैलकुलेट करते हैं, दैट इज C5 पोजिशन, 1 2 3 4 5 position and this is the 6th position, 1 2 3 4 5 and this is the 6th position। so C5 पोजिशन को हम लेते हैं जिसका
राइट साइड में अगर OH रहता है तो वो होता है D, एंड जिसका लेफ्ट साइड में रहता है L ग्लूकोज होता है। ओके, तो हम उसे इसी तरह ही हम नेमिंग नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए, D and isomer are mirror image of each other. In glucose, the nomenclature should be at C5 because that is adjacent to terminal primary alcohol. Carbon determines whether the sugar is D or L isomer. If the OH group on the right side, the sugar is D series, and if on the left side, it belongs to L series. So देखिए, these are the mirror image of each other. कैसे? इस साइड में अगर हम एक एन ऑफ सिमेट्री करते हैं, देखिए जिसका लेफ्ट साइड में जो भी है वो उसका राइट साइड में है, ये वाला हिस्सा को छोड़ के बाकी सब सेम पोजीशन में तो नहीं है, कुछ कुछ है एंड कुछ कुछ नहीं है। So these are the mirror image of each other. ये वाला वो जो है देखिए ये इस तरफ चला आया है, एंड ये वाला जो है वो भी चेंज हो गया है, ये वाला भी जो है वो भी चेंज है, ये वाला भी जो है वो भी चेंज है। बाकी ऊपर एंड नीचे वाला को छोड़कर बाकी सब चेंज ही है, समझ गए। तो उसके बाद देखिए एनांशियोमर एंड डायस्टेरियोमर के डिफरेंस क्या क्या होता है। एनांशियोमर और स्टेरियोइसोमर दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एनांशियोमर एंड डायस्टेरियोमर और स्टेरियोमर दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एपीमर क्या होता है ना डिफरेंस, द डिफरेंस एट एनी सिंगल चिरल एटम ग्लूकोज मानोज आर C2 एपीमर व्हाइल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। देखिए एपीमर में क्या होता है। So epimer is the different single chiral atoms that have been जो रहता है कि देखिए डिफरेंस एट एनी सिंगल चिरल सेंटर में वो डिफरेंस रहता है, बाकी सब सेम रहेगा, उसको बोलते हैं एपीमर। सो उसका एग्जांपल भी हम देखते हैं, ग्लूकोज एंड मानोज एट C2 एपीमर एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। देखिए पोजीशन में ही सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी सब सेम ही है। देखिए हम एग्जांपल में समझाते हैं आपको। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, ये भी वहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। सो देखिए पहला लिखा है ग्लूकोज एंड मानोज के अंदर C2 एपीमर में हुआ है चेंज, ये हो गया C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज C2 पोजीशन। यहाँ पर देखिए C2 पोजीशन ऑफ मानोज, यहाँ पर देखिए इन दो प्लेस में ही सिर्फ वो इसका पोजीशन चेंज है, बाकी सब सेम है। एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज C4 एपीमर में हुआ है, C4 एपीमर ये हो गया आपका ग्लूकोज में, ये भी हो गया C4 एपीमर। ओके, बाकी सब सेम ही है। एनोमर म्यूटेशन कैसे होता है चलिए देखते हैं। D एंड C साइक्लिक फॉर्म ऑफ D एंड C नहीं, ये होगा आपका अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। अरे गलती से लिख दिया, अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। म्यूटेशन दी अल्फा एंड बीटा लिखना, अल्फा एंड बीटा। एपीमर ऑफ ग्लूकोज है डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, म्यूटेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन representing the interconversion of alpha and beta forms of D-glucose to an equilibrium mixture। देखिए उसका एग्जाम्पल देख के ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि हम क्या किए कि ना अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, देखिए उसका जो रहता है ऊपर में, ऊपर का हिस्सा में क्या रहता है C डबल बॉन्ड, वो जो रहता है उसको हम OH के साथ बॉन्डिंग करके जो वो इसका जो OH है वो वहाँ पर शिफ्ट करके वो जो OH वो जो था वो मिडिल में हम बॉन्डिंग कर दिए हैं, 1 नंबर एंड 5 नंबर के प्लेस में ऑक्सीजन को अंदर ले आए हैं। समझ भी नहीं पाए। देखिए ये जो है डबल बॉन्ड और रिंग है, उसको क्या किए कि ना एक सिंगल बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पर ला के 5 नंबर के बॉन्डिंग के साथ हम बॉन्डिंग कर दिए, एंड ये प्लेस में जो OH था यहाँ पर जो उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं, ऊपर के हिस्से में एक OH ग्रुप लगा दिए हैं।
समझ में आ रहा है। ऐसे ही इस तरफ सिर्फ हम इस तरफ राइट साइड में वो OH लगा दिए हैं एंड यहाँ पर इस तरफ हम राइट साइड में लगा दिए हैं एंड इस तरफ लेफ्ट साइड में हम OH ग्रुप को कर दिए हैं, बाकी सब सेम ही है। तो इसको हम इस तरीका पे लिख सकते हैं, जैसे कि क्या रहता है, एक रहता है फिशर प्रोजेक्शन, ऊपर वाला एग्जाम में ये रहता है फिशर प्रोजेक्शन एंड बी वाला जो रहता है हावर्थ प्रोजेक्शन। बी वाला जो प्रोजेक्शन रहता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर रहता है उसे हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन ही है। ये जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए जो कौन सा बॉन्डिंग कहाँ से चला लगा चुका है। वो ऑक्सीजन के बाद जो ग्रुप था वो था CH2O। इस कार्बन के साथ क्या लगा है, देखिए CH2OH एंड H लगा है, CH2OH एंड H है यहाँ पे। तब उसके बाद OH H है, OH नीचे की तरफ रहेगा एंड H ऊपर की तरफ है। उसके बाद जो रहता है OH ऊपर की तरफ एंड H नीचे की तरफ। उसके बाद H ऊपर की तरफ एंड OH नीचे की तरफ एंड उसके बाद जो रहता है H रहेगा ऊपर की तरफ एंड OH रहेगा नीचे की तरफ। समझ गए। इस तरह हम अल्फ़ा एंड बीटा को कैलकुलेट किया हुआ है। अल्फ़ा के ये केस में देखिए डी ग्लूकोज नॉर्मल केस में तो जैसा था ऐसा ही है एंड उसका कोई OH पोजीशन में सिर्फ OH आ जाएगा। OH जो ट्रांस हुआ था यहाँ पे OH ही रहेगा। यहाँ पर देखिए सेम ही है, बट क्या है कि यहाँ पर जो H ऊपर की से था एंड OH नीचे की तरफ था, ये सिर्फ थोड़ा सा ये हो गया है। जैसे कि हमारा देखिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रहने से क्या फ़र्क पड़ता है ना, तुम लोग देखे हुए ऐसा एक करके एक डार्क वाला चिन्ह रहता है, जैसे कि ऊपर की तरफ हम जानते हैं एंड एक रहता है नीचे की तरफ, जैसे कि जो ये रहता है ऐसा होके जो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होके आता है। इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री जो रहता है या फिर बिलो दी प्लेन रहता है, ये रहता है अबव दी प्लेन, ये रहता है बिलो दी प्लेन। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हम पहले से देख लिए है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। हम सिर्फ यहाँ पे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ही याद करेंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इसमें क्या है कि जो कार्बन नंबर 2 है 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन एटम में जो 2 नंबर कार्बन एटम में C डबल बॉन्ड वो आएगा जो कीटोज ग्रुप है एंड ऊपर की जो एल्डिहाइड जो ग्रुप था उसको चेंज करके CH2OH यानी नीचे की तरफ CH2OH, इतना ही है, बाकी सब सेम ही है। तो उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज सुक्रोज एंड लैक्टोज को कैसे बनाता है। दो ग्लूकोज को जब बॉन्डिंग होता है इस तरफ जो इसका ये हो इस कार्बन C1 पोजीशन एंड C4 पोजीशन के साथ ग्लूकोज दूसरा कार्बन का C4 के साथ जब बॉन्डिंग होता है तो उससे क्या बनता है ना, माल्टोज ही बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा अल्फा डी ग्लूकोसाइल 1 एंड अल्फा डी ग्लूकोज के साथ बॉन्डिंग हुआ है। जैसे कि मीथेन के साथ बॉन्डिंग होता है तो मिथाइल होता है, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज के साथ बॉन्डिंग होता है तो ग्लूकोसाइल, पहला वाला ग्लूकोसाइल होगा एंड जो मेन चेन है ये वाला है मेन चेन, इसलिए उसका नाम अल्फा डी ग्लूकोज लिखा गया है। एंड जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके दो ग्लूकोज मिलके हमारा क्या बनता है ना, माल्टोज बनता है। इस तरफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिला के क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। इसी तरह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिला के क्या बनता है ना, लैक्टोज बनता है। ये तीनों याद रखना जरूर। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज ये हो गया गैलेक्टोज, ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया फ्रुक्टोज को मिला के सुक्रोज बन गया। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिला के क्या बन गया ना, लैक्टोज फॉर्मेशन हुआ है। तो दो ग्लूकोज मिला के पहले जो हम देखे थे वो माल्टोज का फॉर्मेशन हुआ है, ये याद रखना। उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स स्टार्च इज द carbohydrate reserve of plants which is most important dietary source for higher animal including human. High content of starch is found in cereals, roots, tubers, vegetable etc. Starch consists of two polysaccharide components, water soluble amylose 15 to 20% and water insoluble amylopectin 80 to 85%. Amylose is a long unbranched chain with 200 to 1000 D-glucose units held by D1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। amylopectin ऑन दी, यहाँ पर 2 लिखा होगा, 2 लिखना चाहिए, यहाँ पर भी 2 एंड वहाँ पर भी 2 लिखना चाहिए।
ओमिट हो गया है। Amylopectin on the other hand is a branch chain with D126 glycosidic bond in the branching point and a D124 linkage. Starch are hydrolyzed by amylase, जो हमारा एंजाइम जो रहता है सालिवा में पैनक्रियाटिक एंड सालिवा में पैनक्रियाटिक एंड सालिवारी में अमाइलेज एंजाइम उसको हाइड्रेट करता है एंड लिबरेटेड डेक्सट्रीन एंड फाइनली माल्टोज एंड ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट होता है स्टार्च। उसके बाद आता है स्टार्च का स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च को कैसा होता है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ ग्लूकोज को मिला के ये बनता है हमारा अल्फा एमाइलोज। अल्फा एमाइलोज के साथ देखिए एमाइलोपेक्टिन भी बनता है वन, जो ये है अल्फा एमाइलोज हो गया। अल्फा एमाइलोज के साथ एमाइलोपेक्टिन का ब्रांच बना के ये मेन चेन है, उसके से ये है मेन चेन। देखिए एमाइलोपेक्टिन जो है मेन चेन हो गया आपका एंड ये हो गया ब्रांच चेन। 1 to 6 नंबर कार्बन प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। देखिए मेन चेन हो गया ये एमाइलोपेक्टिन, उसी तरफ हमारा क्या बनता है ना स्टार्च बनता है। उसके बाद और एक जो लिखा रहता है पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन इज द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल्स, hence often referred to as animal starch. It is present in higher concentration in liver followed by muscle brain. ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए यहाँ पे ये उसका जो रिंग रहता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन, जनरल स्ट्रक्चर एंड लास्ट एट ब्रांच पॉइंट। ये हो गया उसका ब्रांच पॉइंट, इससे लार्ज करके ये वाला व्यू बना हुआ है स्ट्रक्चर। उसके बाद आ गया कंपैरिजन ऑफ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव कार्बोहाइड्रेट का जो डिफरेंस टाइप का रहा उसे पता कैसे चलेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। आपको एक पाउडर दिया जाएगा, उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड पॉलीसैकेराइड्स लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन। सपोज पहले हम क्या करते हैं ना मोलिस टेस्ट करते हैं, जैसे कि वो जनरल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड है, प्रोटीन है, कौन सा है वो पता चल सकता है। उसमें क्या होता है कौन सा रिएजेंट भी लिखा रहता है। स्पेसिफिसिटी किसके लिए ना ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। पॉजिटिव पे यदि होगा तो वायलेट और पर्पल रिंग आएगा। एग्जाम्पल रहता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार सब कुछ उसमें है। बाइंडिंग टेस्ट में क्या होता है ना डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर, जो रहता है रिड्यूसिंग शुगर कौन है ना मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड उसका एग्जाम्पल में आता है। ओलिगोसैकेराइड जो रहता है ओलिगोसैकेराइड में क्या बाइंडिंग रिएजेंट में इसमें यूज करते हैं। स्पेसिफिसिटी रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूज होता है। जो पॉजिटिव रिजल्ट है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, बिग रेड पीपीटी बनता है एक बनता है एंड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज उसका एग्जाम्पल में आते हैं। फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है ना फेलिंग्स ए प्लस फेलिंग्स बी सोल्यूशन को लेकर रिएजेंट लेकर हम टेस्ट करते हैं, वो भी रहता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए। ब्रिक रेड कॉपर एंड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज एंड माल्टोज को डिटेक्शन करने के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बारफोर टेस्ट है वो सिर्फ ओनली फॉर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को डिटरमाइन करता है। डिफरेंशिएट मोनो एंड डाइसैकेराइड्स रेड पीपीटी विद इन 2 to 3 मिनट्स में बारफोर रिएजेंट डालने के लिए यहाँ पर हमारा क्या बन गया ना हमारा मोनोसैकेराइड बन गया। यहाँ पर जो बन गया ये फिलिंग्स टेस्ट में क्या होता है एंड बारफोर टेस्ट में दोनों में ही हम रिड्यूसिंग शुगर ही डिटेक्शन कर सकते हैं। फ्रुक्टोज जो अलग हो गया वो कीटोज के लिए रह जाता है। सेलिवेलिंग टेस्ट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोज शुगर वो फ्रुक्टोज। उसके बाद आयोडीन टेस्ट जो रहता है वो तो पॉलीसैकेराइड के लिए स्टार्च, ग्लाइकोजन। और साजोन टेस्ट रहता है शुगर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जो कि ग्लूकोज और लैक्टोज को जानता है रिड्यूसिंग शुगर वाला। फीचर्स रहता है बेंडिक्स, फेलिंग्स एंड बारफोर्ड्स में मीडियम रहता है। बेंडिक्स रहता है अल्कालाइन, फेलिंग्स रहता है अल्कालाइन, बारफोर्ड रहता है एसिडिक। डिटेक्ट करने के लिए रिड्यूसिंग शुगर, फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूसिंग शुगर, बारफोर्ड मोनोसैकेराइड के लिए। टाइम रहता है बेंडिक्स स्लो रहता है, फेलिंग्स में मॉडरेट रहता है, बारफोर्ड में बहुत जल्दी हो जाता है, रैपिड 2 to 3 मिनट में हो जाता है। यूज होता है बेंडिक टेस्ट रूटीन टेस्ट के लिए यूज होता है, फेलिंग्स कन्फर्मेशन के लिए एंड बारफोर्ड डिफरेंशिएशन के लिए। मोलिस टेस्ट कन्फर्म कार्बोहाइड्रेट, बेंडिक टेस्ट फेलिंग्स टेस्ट रिड्यूसिंग नेचर, बारफोर्ड एंड सेल्यूलम टेस्ट क्लासिफिकेशन और साजन फाइनल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम उसे यूज करते हैं। तो ठीक है हम अभी
आज का जो सेक्शन था वो क्लोज हो गया। जो लोगों ने देख रहे हैं बट हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।